Good morning, students. So, beta, today we are going to learn the next program from our sheet, question number 6. And children, I want to tell you that this program has already appeared in the boards also. Okay. So now see that the problem says that write a program to input a string and to print it after removing the vowel. Okay, children, means we have to take the input of a word and after that we have to remove the word without the vowels. For example, it is given if we input the word computer. Okay, so you know that in the computer there are three vowels that are o, u and e, so we have to remove them and the output which will be printed on the screen, that will be CMPTR. Okay, so children, what should be the logic of the program? That we will fetch the individual characters from the entered string and check whether they are vowel or not. If the character is a vowel, then we are not going to print that, and if it is any other character except the vowel, then we will print it on the screen. Okay, children. So children, the main thing which we have to learn here, that we have to check the vowels which we have already learned in the previous program also. But the children, today, before executing this program, I want to tell you about few more logics, that how to check whether a character is a vowel or not. Okay, so look at this page now, children. In this page, children, I tell you the most used logic for checking the character for vowel. Okay, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले लॉजिक यहाँ पे हैं, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है पहले वहाँ पे देखिए। मैंने यहाँ पे बोला कैर सी एच इक्वल टू कैपिटल एम, बेटा ओके, सी एच इज़ अ वेरिएबल हैविंग वन वैल्यू स्टोर्ड इन इट. After that we have to print whether the ch is a vowel or not. Okay, and for that look at the next line, children. One condition is given inside the if. In the if, children, see what is told. If ch is equal to a, or ch is equal to e, ch equal to capital I, capital O, capital U, then ch is equal to small a. If ch is equal to small e, small I, small o and small u. So children, total 10 conditions are given. Okay, because we know that we have 5 vowels, but they can be in capital letter or in a small letter. Okay, so children, first 5 conditions are for the capital A, E, I, O, U, and next 5 conditions are for small a, E, I, O, U. ठीक है, तो 10 कंडीशन दी गई हैं और इन 10 कंडीशन में बेटा कोई भी अगर एक भी ट्रू है तो यानी क्या प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ एन वॉवेल. ठीक है, कंट्रोल आपका आएगा इफ ब्लॉक के अंदर एंड इट विल प्रिंट इट इज़ ए वॉवेल. ठीक है, और अगर इन 10 में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में, और क्या बोल देगा, नॉट अ वॉवेल. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की है कैर सी एच इक्वल टू कैपिटल एम, यू नो दैट द वैल्यू ऑफ सी एच विल नॉट मैच टू एनी ऑफ दीज 10 वैल्यूज थ्रू विच वी आर कंपेयरिंग द सी एच. ओके, तो जब 10 में कोई भी कंडीशन नहीं मैच कर रही है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स में, और क्या प्रिंट कर देगा, नॉट अ वॉवेल. तो चिल्ड्रन, द मेन थिंग इज हियर इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल कि दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ 10 कंडीशंस. ठीक है, हमें 10 कंडीशन लगानी होंगी टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज अ वॉवेल और नॉट. ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि देखिए अभी आगे आने वाले कई प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे 10 नहीं आपको 20 भी लगानी पड़ सकती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, दैट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल पेयर, यानी कहीं पे अगर 2 वॉवेल्स एक साथ आ रहे हों तो बेटा जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा 10 कंडीशन उसके लिए, और जो सेकंड कैरेक्टर होगा 10 कंडीशन उसके लिए, यानी कि हमें 20 कंडीशन लगाने की सिचुएशन भी आ सकती है. तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है ना, तो फिर अब इसका जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अब देखिए आप सेकंड एग्जाम्पल. Children, in the second example, now look, the same thing is there. Char ch equal to capital M, and then look at the next line. Children, I added one line in the previous example, that is character dot to uppercase ch. मैंने क्या किया बेटा, जो सी एच की वैल्यू थी उसको बेटा मैंने कैपिटल केस में कन्वर्ट करके सी एच में ही स्टोर कर दिया. तो अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब कैरेक्टर में कैसी भी वैल्यू हो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गई होगी, चाहे वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, यानी कोई भी अगर लेटर है तो अपर केस में कन्वर्ट हो गया होगा, और कोई अगर कैरेक्टर है, सॉरी, कोई अगर सिंबल या नंबर है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट कैरेक्टर. ठीक है, तो अगर लेटर है तो वो अपर केस में आ गया होगा, ए टू जेड वाली कोई भी वैल्यू होगी. ठीक है, तो अब आपको जब पता है कि कैरेक्टर अपर केस में है, यानी कि अब आपको 10 कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, हम केवल 5 कंडीशन कैपिटल वाली चेक कर लेते हैं.
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सी एच इक्वल टू कैपिटल ए, इफ सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू। सो चिल्ड्रन आई गिवन 5 कंडीशंस नाउ। ठीक है ना, तो 5 कंडीशन दे दी और बस अगर इन पांचों में एक भी कोई मैच हो रही है तो क्या लिख के आ जाएगा, इट इज़ एन वॉवेल, अदरवाइज नॉट एन वॉवेल। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया। तो कैसे मैंने केवल यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड किया, टू अपर केस, और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि नाउ देर इज़ नो नीड टू ऐड 5 मोर कंडीशन फॉर स्मॉल वॉवेल, है ना। तो ये एक फ़ायदा हो गया। या आप क्या कर सकते हो, इसका रिवर्स भी कर सकते हो। आपने क्या बोला, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस सी एच। तो अब आपको पता है कि आपके जो कैरेक्टर्स होंगे वो स्मॉल में होंगे, तो अब आप चाहो तो केवल 5 कंडीशन किसकी लगा लो, स्मॉल केस वाली लगा लो। ठीक है, तो ये दो बेटा मेथड हैं जो बिल्कुल अच्छे हैं और आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड तो ओके हैं ही है, बट मैं अब आपको एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ, पर थोड़ा सा लॉजिकल है, क्योंकि आने वाले बेटा स्ट्रिंग हैंडलिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पे मैं यही सेम लॉजिक अप्लाई करने जा रहा हूँ। पर उनको समझने के लिए पहले आपको ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसको अच्छे से एक बार ध्यान देके समझना होगा। ठीक है, तो आपके लिए फिर ये वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स वाले प्रोग्राम बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए फिर थर्ड एग्जाम्पल में बेटा मैंने कैर सी एच इक्वल टू स्मॉल एम, मैंने एक सी एच नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने स्मॉल एम स्टोर कर दिया। इसके बाद अगली लाइन पढ़िए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग वी ओ डब्ल्यू यानी वॉव इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बेटा मैंने इस स्ट्रिंग वेरिएबल में 10 कैरेक्टर्स स्टोर कर दिए, 5 कैपिटल में 5 स्मॉल में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पे जो वॉव नाम की स्ट्रिंग है इसमें 0 से लेके 9 तक 10 कैरेक्टर स्टोर हो गए हैं और ये सारे वॉवेल्स हैं, खास बात ये है। ठीक है, अब आप अगली लाइन देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा वॉव डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो वॉवेल्स की जो मैंने एक स्ट्रिंग फॉर्म की है इसमें सी एच का इंडेक्स पता लगाओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जरा ध्यान दीजिएगा, सी एच की वैल्यू कितनी है इस समय, अभी अभी बेटा सी एच की वैल्यू है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का जो इंडेक्स है वो क्या होगा वॉवेल के अंदर, जरा देखिए यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं कि एम तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, यानी कि एम बेटा जब इस लिस्ट में कहीं है ही नहीं 0 से लेके 9 तक, तो इसका जो इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा, -1। याद आया आपको, मैंने जब ये फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ था कि इफ़ द गिवन कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द स्ट्रिंग देन दिस इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द वैल्यू -1। ठीक है, यानी कि m बेटा इसके अंदर है ही नहीं, यानी क्या आंसर आएगा -1। -1 आने का क्या मतलब है कि ये वॉवेल नहीं है। रिमेंबर दिस, ओके, इसको माइंड में खूब अच्छे से कहीं स्टोर कर लीजिए कि कोई कैरेक्टर अगर इस लिस्ट में नहीं है यानी कि वो वॉवेल नहीं है और उसका आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है, अच्छा फिर एक काम करते हैं, सी एच की वैल्यू चेंज कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, स्मॉल ए, ठीक है, m हटा दिया, स्मॉल ए कर दिया। स्मॉल ए के बारे में सोचिए क्या आंसर आएगा। स्मॉल ए बेटा कौन से इंडेक्स पर है, 5 पर है, तो यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, फिर ए को भी हटा दीजिए, मैंने क्या दे दिया, कैपिटल आई। कैपिटल आई का देखिए क्या इंडेक्स है इसके अंदर, वॉव के अंदर कैपिटल आई का है 2। ठीक है ना, तो कैपिटल आई का जो इंडेक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कैपिटल ए का देखिए क्या इंडेक्स है। ठीक है, कैपिटल ए का जो इंडेक्स है वो आप जब देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। स्मॉल यू का इंडेक्स देखिए, स्मॉल यू का इंडेक्स कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, ऐसे ही किसी सिंबल का देखिए, हैश या डॉलर, डॉलर का देखिए क्या आएगा, डॉलर का इंडेक्स बेटा डॉलर तो है ही नहीं कहीं वॉवेल में, तो डॉलर का इंडेक्स कितना आएगा, -1। ठीक, तो फिर इसके बाद हम एक पी का देखते हैं, कैपिटल पी का इंडेक्स कितना है, कैपिटल पी है ही नहीं, तो कैपिटल पी का कितना आएगा बेटा, -1 आएगा। तो आप बेटा क्या देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सीखने की चीज़ है कि जब ए है, कैपिटल आई है, कैपिटल ए है, ठीक है, स्मॉल यू है, यानी जब आप वॉवेल देते हो तब तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। ध्यान दीजिए 0 से लेके 9 के बीच में। पर अगर आपका कैरेक्टर वॉवेल नहीं है तब कितना आंसर आता है आपका, हमेशा -1 आता है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत इजी लॉजिक है कि आपको क्या करना है बेटा, एक एक कैरेक्टर आप जो है निकाल के चेक कर सकते हैं कि उसका इंडेक्स वाव में कितना है। ठीक है, अगर उसका आंसर 0 से 9 के बीच में इंडेक्स है यानी कि वो वॉवेल है, और अगर उसका आंसर -1 आ रहा है यानी कि वो इस लिस्ट में नहीं है, वो वॉवेल नहीं है। क्लियर है ना।
तो ऐसे बेटा हम बड़े आराम से चेक करते हैं कि वॉवेल डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच अगर जीरो या जीरो से ज़्यादा आ गया, ठीक है, हमने क्या लिखा है, वॉव डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन इट इज़ एन वॉवेल एल्स नॉट अ वॉवेल। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हम लोग यही लॉजिक यूज़ करने जा रहे हैं। तो नाउ आई टेक यू टू द प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या दी गई थी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, ये है बेटा प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था हमें कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द वॉवेल। ठीक है, कंप्यूटर दिया गया था, CMPTR फिल करना है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम में। शुरू की फर्स्ट 4 लाइंस यू नो इट वेरी वेल। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग STR इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट लाइन। तो सपोज बेटा आपने STR में क्या इनपुट कर लिया, कंप्यूटर, COMPUTER। ठीक है, कंप्यूटर इनपुट कर लिया। इसके बाद अब अगली लाइन देखिए, स्ट्रिंग वॉव इक्वल टू AEIOU और AEIOU। तो आपने कैपिटल में AEIOU और स्मॉल में AEIOU, ठीक है, ये आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, इसके जो इंडेक्स हैं वो भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, 0 से लेके 9 तक सारे वॉवेल्स स्टोर हैं। अगली लाइन में आइए, कैर CH और इंटीजर x। फिर बेटा यहाँ पे मैंने लूप चला दिया। ठीक है, किसका, x का लूप चला दिया। पहली बार x की वैल्यू 0 है। अंदर आइए, CH इक्वल टू STR डॉट कैरेट एक्स। ठीक है, CH में मैंने कहा कि STR से निकालिए कैरेक्टर 0 से। तो बेटा इसकी भी मैं मार्किंग यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर की लेंथ है 8, यानी जो कैरेक्टर हैं 0 से 7 तक। तो कैरेट 0 पे क्या निकल के आएगा बेटा, कैपिटल C निकल के आ जाएगा, कंप्यूटर का C निकल के आ गया। अब आपको ये देखिए वॉवेल है तो नहीं प्रिंट करना है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो CH की जो वैल्यू आपने फेच की है वो वॉवेल है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा बेटा, इस कैपिटल C का वॉवेल में इंडेक्स पता लगाइए। तो आपको पता है कि कैपिटल C तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ का आंसर आपका आ जाएगा -1। ठीक है ना। और हमने यहाँ पे क्या बोला है कि वॉवेल डॉट इंडेक्स ऑफ CH इज इक्वल टू -1, कि अगर आपका आंसर -1 आता है यानी कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट CH, तुरंत CH को प्रिंट कर दो, यानी बेटा कैपिटल C को प्रिंट कर दो। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो रहा है, और आउटपुट में पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, आपकी C प्रिंट हो गई। तो जो आपने फेच किया 0 वाला कैरेक्टर, उसको चेक किया वॉवेल वाली लिस्ट में, नहीं मिला, तो यानी आंसर -1 आया, उसको प्रिंट कर दिया। इसके बाद अब आपका लूप ये ऊपर जाएगा, x प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 1, CH इक्वल टू STR डॉट कैरेट एक्स। अब बेटा कैरेट 1 निकालो, तो x की वैल्यू 1 है, क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे O निकल के आएगा, स्मॉल o है। तो आइए वॉवेल डॉट इंडेक्स ऑफ CH में स्मॉल o का इंडेक्स पता लगाइए, कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे O है, तो बेटा आंसर पॉजिटिव में आया है, यानी कि ये जो O है CH की वैल्यू ये इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि ये वॉवेल है। और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया है, वॉवेल है, तो इसको प्रिंट नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो यानी ये जो 1 वाला कैरेक्टर है O, ये आपका प्रिंट नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वर्ड वॉवेल हटाने के बाद तब प्रिंट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर चलिए, x प्लस प्लस, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, CH इक्वल टू STR डॉट कैरेट 2 पे क्या निकल के आएगा, स्मॉल m का इसमें वॉवेल में इंडेक्स पता करिए, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आंसर आया -1, और -1 आया है यानी कि वॉवेल नहीं है, प्रिंट कर दीजिए। तो ये देखिए m आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे चलेंगे आप, x प्लस प्लस, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 पे क्या मिलेगा आपको, p मिलेगा, p का भी इसमें पता लगाइए इंडेक्स, -1 है यानी प्रिंट कर दीजिए। इसके बाद फिर आप 4 पे जाओगे, 4 पे क्या मिलेगा आपको, स्मॉल u का देखिए क्या इंडेक्स है बेटा, इसमें 9 आ गया, 9 का क्या मतलब है कि ये वॉवेल है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद फिर 5 पे जाओगे, 5 पे आपको t मिलेगा, वॉवेल डॉट इंडेक्स ऑफ CH, स्मॉल t का इंडेक्स पता लगाइए, कितना आएगा, -1, क्योंकि इसमें नहीं है, तो यानी कि ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर आपको ई निकालोगे आप 6 पे। ठीक है, 6 पे ई मिलेगा, ई तो वॉवेल है, ई का इंडेक्स 6 है, यानी ये नहीं प्रिंट होगा। और फिर लास्ट में 7 पे क्या मिलने वाला है,
आर का इंडेक्स क्या आएगा -1, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा ऐसे अब आपको ये प्रोग्राम आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जहाँ कि हमने अपने वर्ड कंप्यूटर से एक एक करके कैरेक्टर्स को फेच किया और इस लिस्ट में चेक करते गए, और जब जब कैरेक्टर का इंडेक्स कितना आया -1 आया तो हम उसको प्रिंट करते गए, और अगर आपका आंसर 0 से 9 के बीच में आया तो प्रिंट नहीं किया। तो देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि बेटा आप यहाँ पे 10 कंडीशंस लगाने से बच गए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम में जो लॉजिक सीखना था कि कैसे हम लोग बेटा बिना 5 या 10 कंडीशन लगाए अपने प्रोग्राम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने केवल एक कंडीशन की हेल्प से चेक कर लिए कि वेदर द कैरेक्टर्स वर वॉवेल और नॉट। ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बेटा कि ये प्रोग्राम मैंने ऐसे इंडेक्स ऑफ फंक्शन की हेल्प से कर दिया है, बट आप चाहो, ठीक है ना, तो आप अपने जो प्रीवियस लॉजिक हमने सीखे थे, यानी कि आपको अगर आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझको तो यही पहले ही वाला अच्छा लग रहा था कि 10 कंडीशंस लगा दूं या मैं 5 कंडीशन लगा दूं वॉवेल चेक करने के लिए, तो आप चाहे तो इस लॉजिक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने केवल आपको उसका एक शॉर्टकट बताया है, वरना ये तो आपके जो है ऑथेंटिक लॉजिक्स हैं ही हैं। ठीक है ना, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल थोड़े से लॉन्गर जरूर हैं, बट आप चाहो तो इन लॉजिक्स को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे बेटा ये बोर्ड की आई हुई प्रॉब्लम थी 15 मार्क्स की, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, और अब जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग अगली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।